Sir, please unmute, sir. Namaste to all of you. Respected SVSS Narayan Raju sir, Professor, Department of Hindi, Central University of Tamil Nadu. Dr. R.P. Raya sir, the most learned intellectual of this today's meeting, sir. I am Dr. Raghu sir. I am from Varangal. It is near to Hyderabad, sir. Recently, I have joined the Central University of Tamil Nadu. And today, it is a most auspicious day. And on the Navami day of this Vasanta Navaratri day, the mandal has been started and formally we have inaugurated, and lot of blessings of the elders are there. On this occasion, I am very much happy to see all of my well-wishers on this board, sir. Thank you very much. This is about me, sir. Thank you, Dr. Raghu. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, Shamla madam is there. May I request ma'am to say a few words, ma'am. Hello, sir. I'm Dr. Katha from Media Department. I'm just purely here because today is Narayan Raju sir's function, and it is always pleasant to listen to him. Sir, सुनना अच्छा लगता है. And two other of my close colleagues, our senior colleague Raghu sir, and my dear friend Preeti. Because of them, like these three people are the one. Because of them, I'm attending this program, and it's my first program that I am a part of this. And I thank you all. Thank you, ma'am. Thank you so much for always being with us, ma'am. Raja sir is there. Raja sir, please, sir. Ma'am, am I audible, ma'am? Yes, sir. Absolutely, sir. You're audible and your side thing is visible, sir. You can turn your face to the camera. Raja sir, please, sir. Yes, sir. Ma'am, Preeti, ma'am, am I audible? Yes, sir. You are audible, sir. Very much audible, Dr. Raja, wherever you are. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जो लोग शत्रुओं की शिक्षा करेगा वो भगवान के समक्ष है. I would like to salute the real God, Professor S.V.S. Narayan Raju sir, and Dr. Raghu sir, and Dr. R.P. Raya sir, and my colleagues, Dr. Preeti ma'am, Dr. Shamla ma'am, and Dr. Kavita ma'am, Dr. Vaibhav ma'am, Dr. Vaibhav, and my dear friends. And this is a day that we are definitely our resource person is going to inspire us with his inside thought. So this is kind of initiative. So nowhere in the university they have been taken such an initiative. So I would like to extend my hearty welcome to one and all persons here, especially to our resource person of the day, and to Dr. Raghu sir, his organizer, and Dr. Preeti ma'am. Without taking much time, I request Preeti ma'am to please go ahead. Thank you so much, sir. Thank you, sir. So we have one more professor here, sir. Professor Vaibhav from Tourism Department. Sir, can you please say a few words? Dr. Vaibhav, sir? Yes, thank you, ma'am. Thank you. Good morning, everyone. I would like to first thank Raghu sir for informing me about this event. And this is my first interaction in this mandal. I am here out of pure curiosity because the topic is very interesting. That is the role of Sri Ram in the story of Rama and personality development. So I hope this session will be very insightful because students have also joined of MBA department, and I think they will have a good learning how we can learn from the life of Sri Ram and how we can develop our personality. I would also thank Professor Raju for taking his precious time and devoting himself for speaking on the topic. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Prabhakar Rai, sir, here along with the professors, students and research scholars also have joined to this meeting. On behalf of BSM Thiruvarur Mandal, I welcome one and all who has joined here. And with the blessings, sir, shall we start the program? Yeah, before you start, I owe an explanation. I have some eye-related
interventions medically. So that's why I'm not able to open my video at this point of time. However, I would like as many friends as possible to keep the videos open so that that will enthuse yourself as also enthuse the learned speaker. And I'm very happy that MBA boys and girls are part of this conversation, because many of our friends earlier used to think Ramayana, Mahabharata, Bhagavad Gita, all that are some kind of a um, uh, interventions or interactions only for old people, etc., etc. It's not like that. Every bit of that is applicable to life, and I'm sure the MBA boys and girls will understand that it is really good business to understand these things. And trust me, your learning is really, really, really going to be a good commercial, viable, ethical, satisfying propositions. And I wish you all good, my dear young students, and my pranams to all the elders here, and my good wishes to Preeti. I will definitely try to see whether once it is recorded, I will try to listen it in a more leisurely environment. So please bear with me, and I wish all success to all these endeavors. Dr. Raghu, on the one day prior to Sri Ram Navami, this is being organized. I am extremely happy, and I wish all good and all satisfaction to all of you. Pranam Shri Professor Raju Rajuji. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Now I request Professor Narayan Raju, sir, Professor of Hindi Department, to take over the mic and please speak, sir. Say a few words and share the things. 1 minute, ma'am. Kavita madam Yes, has sir. introduced. Okay, okay. Kavita madam also joined, sir. Yeah, ma'am has joined. Ma'am, may I request you to please introduce Kavita ma'am? Yeah, so I'm Dr. Kavita, sir. Namaste, sir. This is first time I'm meeting you, Narayan, sir. In fact, it's a great opportunity joining the session. It is going to be quite interesting, and I would like to appreciate Preeti and our HOD Raghu, sir, for organizing such a wonderful event. In fact, earlier I was in Karnataka. We enjoyed this Ramanavami more. That was, missing for this year. I think this is going to give me that. Real enjoyment and real hearing about Rama. And so the topic is very much interesting. I too was thinking how it is correlated with the personality development. And in fact, being the MBA student, they should know about the personality development. And when it comes with our own way of going with the thing and how it is related to Rama, I think they will have more interested points to take from you. I'm also wishing and to hear from you a lot. Waiting with that one. And thank you very much, sir, for giving me the opportunity to express my view. Thank you so much, ma'am. Yeah, now I request sir to please proceed, sir. Any language is comfortable for this thing, sir. Please, sir. I welcome, sir. ओम श्री वेंकटेशाय नमः। सबसे पहले इस पटल पर उपस्थित भारतीय शिक्षा मंडल के सभी सदस्य और सम्माननीय प्रभाकर राय सर और हमारे परिवार के सारे सदस्य, डॉक्टर रघु, डॉक्टर प्रीति, डॉक्टर शिमला जी, डॉक्टर कविता, Dr. Raja, and sir, I'm not seeing your name, but sir, MB, Dr. Vaibhav. Vaibhav, Dr. Vaibhav, and all of our colleagues, students, सबको मैं सबसे पहले श्री राम नवमी की शुभकामनाएं बता देता हूं। और इस संदर्भ में आज जब भी हम रामायण या महाभारत या भगवत गीता की बात करते हैं, अभी राय सर ने बता दिया, ये तो कोई आफ्टर 60s 70s पढ़ने की बात नहीं। इसके मैं एक भगवत गीता के उदाहरण से शुरू करके आगे हम रामायण और राम कथा किस प्रकार हमारे जीवन में काम।
हम सब जानते हैं, जब भगवत गीता पढ़ते हैं अंत तक आते ही संजय बताते हैं, यत्र योगीश्वरो कृष्ण यत्र पार्दो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मम। ये तो इसका शाब्दिक अर्थ अलग है। शाब्दिक अर्थ ये बताते हैं कि संजय से पूछते हैं धृतराष्ट्र, क्या कौन जीतने वाले हैं? मतलब वो चाहते हैं कि दुर्योधन जीतना है, लेकिन वेरी डिप्लोमेटिकली संजय आंसर देते हैं, यत्र योगीश्वरो कृष्ण यत्र पार्दो धनुर्धर। एक योगीश्वर कृष्ण और दूसरा अर्जुन। हम सब जानते हैं कृष्ण और अर्जुन नर नारायण, लेकिन इसी को इस वास्तव में कृष्ण क्या है? कृष्ण मतलब कोई भगवान, भगवान को मानने वाले माने, ना मानने वाले ना माने, इससे कोई लेना देना। लेकिन कृष्ण मीन्स इट गिव्स ए कॉन्फिडेंस। कृष्णा मीन्स कॉन्फिडेंस। जो कृष्णा लीड द वार, बट युद्ध में बाण डालने वाले, पूरा युद्ध करने वाले तो अर्जुन। सो एक कॉन्फिडेंस है, और अर्जुन मीन्स इज द हार्ड वर्क। कॉन्फिडेंस प्लस हार्ड वर्क, it will give automatically fruitful result. यत्र योगीश्वरो कृष्ण यत्र पार्दो धन तत्र श्री विजयो ध्रुवा नीति मति। वहां तो विजय तथ्य है। मतलब whenever your confidence plus hard work, it will lead you fruitful, very very fruitful success, no doubt at all. इसी चीज को आज हम आगे, जब भी कृष्ण कथा में अलग डायमेंशंस रहते हैं, लेकिन राम कथा, आजकल हम ये बताते हैं कि जीना सिखाती है राम कथा। राम कथा मतलब ऐसे लोग बोलते हैं कि एक को अपहरण किया, एक ने जाके वहां मारा और लेकर आए। इस प्रकार की भ्रम रहित अज्ञान पूर्वक उक्तियां हमें बोलना नहीं चाहिए। राम कथा ये सिखाती है किस प्रकार हम अपने जीवन में आगे बढ़ना है, किस प्रकार करे तो हमारे सारे स्ट्रेस अपने आप दूर हो जाता है। इसके लिए हम जहां अयोध्या कांड से एक उदाहरण के साथ मैं आरंभ करना चाहता हूं। जब भी अयोध्या कांड की बात करते हैं, हम सब जानते हैं अयोध्या कांड के आरंभ में ही राम पट्टाभिषेक की तैयारी करते हैं। राम पट्टाभिषेक का जो समाचार सबसे पहले किसको सुनाए, क्यों बताते हैं? जैसे राम को बता दिया, राम की प्रतिक्रिया क्या है हम देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब गुरु ऐसे बता दिया कि आप राजा बनने वाले, और इसके साथ साथ गुरुजी ने एक बढ़िया शब्द उनको बता दिया। तुलसीदास इतना बढ़िया बताते हैं, राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाहे काजू। हे राम, गुरु वशिष्ठ जी आए हैं और बता दिया अगले दिन, मतलब सुबह होते ही आप राजा बनने जा रहे हैं। इसके लिए क्या करना है? देखिए, आज की रात तुम सारे संयम का पालन कर। अगर हम आज जानते हैं आजकल क्या है, कल कुछ बढ़िया होने जा रहे हैं तो आजकल रात भर हम बैचलर पार्टी मनाते हैं, या हो क्या क्या दुनिया भर के काम करते हैं। अगले दिन कुछ उल्टा हो जाए तो सुसाइड भी कर लेते। लेकिन राम कथा आप ध्यान से देखें, अगर कल राजा बनने वाले, वशिष्ठ ने बता दिया तुम बिल्कुल संयम से रहना। और क्यों संयम से रहना? कल कुछ भी राजा भी बन सकता है, कुछ भी हो, लेकिन आप कोई अनर्थ कार्य ना करें। और इसके साथ साथ जब ये सुनने के बाद राम की प्रतिक्रिया, सबसे पहले मैं ये बताता हूं, या मैं राजा बनने वाला हूं नहीं कहा,
देखिए, गुरु सिख देई राय पहि गयो, राम हृदय अस विषमौ भयो, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केल लरिकाई, करण वेद उपबीत बिहाय, संग संग सब भय उचाह, विमल वंश यह अनुचित एक, बंद बिहाई बड़े ही अभिषेक। देखिए, प्रभु श्री राम के मन में अपने भाइयों के प्रति इतना प्रेम है। हम सब एक साथ जन्म लिए, भोजन शयन खेलना बचपना सब हम एक साथ जिए, कर्ण भेद उपबीत बिहाया, कर्ण छेदन भी एक साथ हुआ, उपनयन एक साथ हुआ, विवाह एक साथ हुआ, लेकिन अब यहाँ इस वंश में यह क्या है कि बंद बिहाई बड़े ही अभिषेक, इन सब में एक को छोड़ के बड़े भाई को ही क्यों राज्य देना है। हम सब अगर इतिहास ध्यान से देखते हैं, अनेक राजा ऐसे लोग मिलते हैं कि अपने पिता को ही मारते हैं राज्य के लिए, अपने बड़े भाइयों को भी मारते हैं, जेल में डालते हैं। औरंगजेब की कथा हम सब जानते हैं। लेकिन भगवान श्री राम से ये सीखना है कि भाइयों के साथ कैसे व्यवहार करें। राजा तो खुद बन सकते हैं, लेकिन उन्हें मना कर दिया सबसे, क्यों हम सब एक साथ जन्मे हैं, एक साथ केले हैं, एक साथ अगर क्यों बड़े बड़े होने से क्यों राज्य देना है, सबको देना है। इससे अगर इसी को हम अपने जनरल साधारण जीवन में लगाए तो अगर भाइयों के बीच में कोई तनाव ही नहीं, कुछ मतलब आजकल ऐसी स्थिति देखते हैं कि 1 रुपए 2 रुपए 100 रुपए के लिए भाइयों के बीच में इतनी आपसी दुश्मनी हम देखते हैं। लेकिन राम कथा ध्यान से हम सुनते हैं, क्योंकि कथा सुनना मतलब कहाँ गए का ये नहीं है, इसमें राम क्या कहना चाहते हैं, इसमें ये बताते हैं विमल वंश यह अनुचित ये। यहां तक राम कहना शुरू कर दिया कि हम महान वंश के हैं, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इतने महान वंश के इसमें भी ऐसे एक कलंक कैसे आ गए। तो ये और इससे ये पता चलता है कि भगवान श्री राम से हमें ये सीखना है कि जिस प्रकार जीवन में जीना, अगर राम रात भर पार्टी मनाए तो अगले दिन खराब हो जाए तो इधर पिता को मारना, भाइयों को मारना, इस प्रकार के अनर्थ कार्य हो जाते हैं। लेकिन संयम से रहा, भाइयों के लिए सोचा। जैसे पिताजी ने अगले दिन बता दिए कि आप 14 वर्ष वनवास चले जाओ, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई ऐसे इंकलाब जिंदाबाद क्या क्या दुनिया भर के गलत नारा नहीं लगाए। उन्होंने सीधा कह दिया आप इतना सुअवसर मुझको दिया, क्योंकि वन में जाके मुनियों से ऋषियों से मैं बहुत ज्ञान हासिल करूंगा, सो इस राज काज से मुझको मुक्ति करके ज्ञान हासिल करने के लिए एक स्वर्णिम अवसर दिया है कहकर पिताजी को धन्यवाद कहते हो। आमतौर पर क्या होता है कि सब लोग कैकेयी को हम गाली देते हैं, कैकेयी इतनी उनके खिलाफ लोग मानते हैं। आप ध्यान से देखें, लगभग हमारे दक्षिण में जहां तक मैं जानता कोई अपनी बेटियों का नाम कैकेयी रखते ही नहीं। सुमित्रा है, कौशल्या है, सीता है, सब कुछ है, लेकिन कैकेयी का नाम ही नहीं रखते। मतलब इतने बदनाम लिया है। लेकिन प्रभु श्री राम जी कौशल्या माँ को भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि आप मुझको इतने स्वर्णिम अवसर दिया है। ये है भगवान श्री राम। श्री राम से ये सीखना है कि राज्य की बात में उन्होंने क्या किया, अब सबसे पहले अपने भाइयों के बारे में सोचा, वो भी जहां भाई यहां नहीं है तो उनको भी बुलाए। और इसके साथ साथ अनेक संदर्भों में जब भी हम राम कथा की बात करते हैं, मैं एक आध तुलसीदास के उदाहरण के साथ आगे मैं जाऊंगा। राम की महिमा क्या होती है,
सूर सिरताज महाराजन के महाराज, जाको नाम लेता ही सुकेत हो तो उसरो। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जहां सारे वीरों के वीर श्रेष्ठ शूर वीर हैं भगवान श्री राम, महाराजाओं को भी महाराजा है, अर्थात सर्वम सहा चक्रवर्ती। उनके नाम का ही इतना प्रभाव है कि उसका नाम स्मरण करते ही बंजर भूमि भी हरा भरा खेत बन जाती। इसका मतलब यह है कि असंभव भी संभव हो जाता है, ये कहते हैं। और इसके साथ साथ जहां हम आमतौर पर ज्यादा जब भी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम ये चाहते हैं कि सुंदरकांड से ज्यादा उदाहरण मैं इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि हनुमान जी से हम बहुत चीज सीखना है। कैसे सीखना है मैं बता देता हूं। जैसे हनुमान जी सुंदरकांड का आरंभ हम ध्यान से देखते हैं। देखने से सबसे पहले वो मैनाक से कूद कर समुद्र मार्ग में उड़ते जा रहे हैं। वहां जाते वक्त सबसे पहले उनको सुरसा मिलती। सुरसा रोकती है, हे भाई साहब रुको। क्यों भाई, क्यों रुकना है? मेरे लिए ब्रह्म ने एक वर दिया है। क्या वर दिया? जो भी इस रास्ते में जाते, मतलब इस पानी मेरे ऊपर से जो भी जाते हैं, सब मेरे लिए आहार बनना ही है। तो तुरंत वो कहते हैं, तो हनुमान जी तुरंत, अगर इतने बलशाली हैं, बुद्धिशाली भी हैं, अगर चाहे तो सुरसा को एक क्षण में वो मार भी सकता है, लेकिन हनुमान जी ने उनसे हे मां प्रणाम किया और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं राम कार्य पे जा रहा हूं, तो आई एम द ऑन ड्यूटी। आपको मालूम है ऑन ड्यूटी पे वालों को कोई कार्य हानि करे तो केस तगड़ा रहता है, इसीलिए ऐसे कहते हुए मैं राम कार्य करके, अगर सीता का समाचार लेकर मैं अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताने के बाद आकर मैं आपके लिए आहार बनूंगा, इसमें कोई ये नहीं है। मतलब इतना सच्चाई बोलते हैं, लेकिन वो मानती नहीं है। तो मुझे तो आप तो मेरे लिए आहार तो आए। तब कथा हम सब जानते हैं, जैसे सुरसा बढ़ती जाती है वैसे ही हनुमान जी पे बढ़ते जाते हैं। बढ़ते 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 एकदम देखिए, अगर इस प्रसंग को अगर कोई मीडिया के स्टूडेंट पढ़े, अगर इसको ग्राफिक्स में कन्वर्ट करे, इसके लिए इतना फायदा है आप सोच भी नहीं सकते। मतलब इस चीज को ग्राफिक्स में बनाने के लिए एक जो ग्राफिक्स सीखने वाले विद्यार्थी के लिए इससे ज्यादा कोई बड़ा प्रैक्टिकल वर्क नहीं रहता है, इतना बड़ा इसमें सीख सकते हैं। और इसके साथ साथ एक क्षण में हनुमान जी अंगुष्ठ मात्र बन के उनके मुंह में जाकर फिर बाहर आ जाते। और दो उदाहरण के माध्यम से कैसे हम व्यवहार करें हम अपने जीवन में, मैं और एक दो उदाहरणों के साथ तीनों मिला के मैं समझाने के लिए कोशिश करूं। जैसे इससे पार करते हैं, लंका पहुंच जाते हैं। लंका पहुंचते ही मैं तो बलवान हूं, कभी भी जा सकता हूं, कहीं भी किसी को मार सकता हूं बोल के तुरंत एंटर नहीं किया, रात तक इंतजार किया। जैसे अंधेरे होने के बाद, लगभग रात 11-12 बजे के बाद लंका के अंदर वो कैसे प्रवेश करते हैं? बिल्कुल मच्छर के समान, मतलब मच्छर से भी छोटे बन के पहुंचते वक्त
वहां लंकिनी रहती है। लंकिनी तुरंत उनको पकड़ के पूछती हैं, मेरी अनुमति के बिना आप कैसे जाते? देखिए वहां सुरसा के साथ हनुमान जी ने क्या कहा, हे मां, मैं अभी राम कार्य पे जा रहा हूं, मुझको मौका दो। लेकिन लंकिनी से उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, सीधा अपना रूप दिखा के ऐसे मुटका, ऐसे मुटकी एकदम मारा, एक क्षण में लंकिनी का अंत हो गए, वो अंदर गए। देखिए एक जगह उन्होंने इतनी बढ़िया रिक्वेस्ट करके आए हैं, एक से साथ बिल्कुल उन्होंने क्या किया, सीधा प्रहार कर दिया। जैसे अंदर जाते, अंदर जाने के बाद वहां ऐसे उनको सीता माँ को ढूंढने में बहुत उनको दिक्कत आती, तब भी वो बहुत मुश्किल से ढूंढते हैं। वहां क्या होता है, एक जगह उनको ऐसे मिलते हैं, रामायुध अंकित गृह शोभा भरने न जाए, नव तुलसी का बूंद तह देख हर्ष कपिराए। वहां श्री रामचंद्र जी के आयुध, धनुष, बाण चिन्हों से अंकित स्वस्तिक सब मिला है। तुरंत उन्होंने सोचा यहाँ कोई एक सज्जन है। तब क्या किया, देखिए वो कौन है, विभीषण। विभीषण को देखते ही उनको लगा क्या करें। तब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण ग्राम। अर्थात जहां विभीषण से मिलकर अपना नाम बताकर संपूर्ण राम कथा बताए, इससे टाइम एंड मैनेजमेंट के हनुमान आजकल की भाषा में बोले तो हनुमान इज द बेस्ट टाइम मैनेजर। कैसे एक जगह उनका काम निकालना है, उनसे आर्ग्यू करके अपनी ताकत दिखा के बाहर आए, एक जगह एक शब्द भी नहीं बोला। लंकिनी से सीधा, जैसे लंकिनी मिलती ही उन्होंने क्या किया, ऐसे किया, जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जह लगी चोरा, मुटिका एक महाकपि हनि, रुधिर बमत धरनी डनमणि। जैसे वो रोकते ही हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लौट गई। एक जगह रिक्वेस्ट किया, एक जगह सीधा अपना सब बल दिखाया। जैसे अंदर जाने के बाद विभीषण जैसे सज्जन मिलते ही उनको संपूर्ण राम कथा सुना के उनसे मित्रता करके आगे की कथा लिया है। इससे ये हमें सीखने की आवश्यकता है, जहां समय, संदर्भ, परिवेश और आवश्यकता के अनुरूप हम अपनी ताकत, शक्ति, बुद्धि का प्रदर्शन करना है। क्योंकि मैं बोल सकता हूं बोल के हर जगह बोले तो लोग बोर हो जाएंगे, क्योंकि जहां बोलना है वहीं पे बोलना है। जो शक्तिवान है तो शक्ति हर जगह नहीं दिखा सकते, जो इसके लिए समय, संदर्भ और परिवेश, ये सारी चीज हमको रामायण सिखाती है। क्यों रामायण ही क्यों, राम कथा जीना सिखाती है, क्यों बताते हैं, क्योंकि हम कैसे जीना है, किस प्रकार रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। राम हम सब जानते हैं, एक पत्नी व्रत कहते हैं, बाकी कथा हम सब जानते हैं। अगर एक से ज्यादा विवाह करने से क्या होता है, दशरथ तो महान राजा है, चक्रवर्ती है, तत्कालीन समय के संपूर्ण भारत के चक्रवर्ती हैं, लेकिन एक से ज्यादा रानियां हम आमतौर पर बोलते हैं, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, किस लिए उनका अत्यंत अपने सबसे प्रिय, खासकर श्रीमन नारायण के विरह में तड़पते तड़पते उनको मरना पड़ा, अपना प्राण खोना पड़ा। इसीलिए यह सिर्फ पुरुष के लिए नहीं, स्त्री के लिए भी लागू है। हम हमारे भारतीय सनातन धर्म में हम जो भी बताते हैं सिर्फ पुरुष या स्त्री दोनों के लिए बराबर लागू है, कोई
भेदभाव नहीं, हमारे यहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं। जो भी चीज, जो भी अधिकार, जो भी जिम्मेदारी सबके लिए समान लागू। ये भारतीय सनातन धर्म की विशेषता है। आमतौर पर जब भी हम बात करते तो जो भी फेमिनिस्ट की बात करते तो डोल गंवार पर शूद्र नारी सकल ताड़न के अधिकारी कहा बोल के हम तुलसीदास को गाली देते हैं। लेकिन ताड़ना का अर्थ सिर्फ बजाना ही नहीं है, उसके 5 अलग अलग अर्थ है। देखना भी उनका अर्थ है, संभालना भी एक अर्थ है, और पर्यवेक्षण करना भी एक अर्थ है। इस अलग अलग अर्थों में देख के तो पूरा हमको समझ में आ जाता है। और इसके साथ साथ और मैं 2-3 उदाहरणों के माध्यम से ये बताना चाहता हूं, प्रभु श्री रामचंद्र रामायण ही क्यों पढ़े। हम सब जानते हैं, जब भी हम बात करते हैं तो आजकल लगभग 2 साल से हम इतना जो कोरोना महामारी की हम देख रहे हैं, है ना। इसमें क्या हुआ, अब सब लोग हमको इतनी नीति बताने वाले आए हैं कि सैनिटाइजेशन की बात है। क्या सैनिटाइजेशन मतलब, लोग बताते हैं कि आप बिल्कुल बार बार हाथ धोना है और सारी रीतियां साफ सुथरा रखना है। इस प्रकार की बातें हम बोलते हैं तो हमको हंसी आ जाती है, क्योंकि ये सारी बात रामायण में। इसका एक उदाहरण उत्तरकांड से मैं एक पद के साथ बताना चाहता हूं। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण और मां सीता विभीषण सबके साथ लंका से वापस आते वक्त यह समाचार पता चला है कि संपूर्ण अयोध्या में अभी प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता लक्ष्मण और सारे हनुमान सबके साथ आ रहे, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे बोल के समाचार जिस प्रकार अयोध्या में पता चला, वहां एक साथ संपूर्ण अयोध्यावासी भगवान को देखने बाहर आए। अब समझ लीजिए, 10 उस समय अयोध्या के जो आबादी बताते हैं कि 10,000 लोग, अगर समझ लीजिए 10,000 लोग एक साथ बाहर ही आ गए, तो आजकल की भाषा तो मना है, ये है बोलते हैं। लेकिन तत्कालीन समय में अयोध्या के कॉर्पोरेशन वालों ने क्या किया, कोई गमेक्सन जैसे खराब चीज नहीं डाला है। सुगंध द्रव्यों से सिंचित पानी, सुगंध द्रव्यों के जो पानी से संपूर्ण अयोध्या को सिंचित किया है। मतलब स्पाइसेस एक्सट्रैक्टेड वाटर, मतलब प्योरली ऑर्गेनिक, सारे जो कीटाणुओं को, बैड बैक्टीरिया को नाश करने वाले इतने अच्छे जो सुगंध द्रव्यों से युक्त पानी को संपूर्ण अयोध्या में छिड़काया। क्यों? हम कोई बैड बैक्टीरिया ना फैलाएं, इतने लोग बाहर आए। तो हमारे भारत इतने ऐसे सजग और अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता रखने वाले भारत है कहने के लिए राम कथा सिखाते। और वही नहीं, वहां तुलसीदास बढ़िया वर्णन करते हैं, सारी स्त्रियां अपने कलश, क्योंकि भगवान श्री राम का स्वागत करने के लिए किस प्रकार की तालियां हैं, स्वर्ण तालियां, गोल्ड प्लेट्स और कलश, स्वर्ण कलश। मतलब अयोध्या के साधारण से साधारण लोगों के पास भी ऐसे गोल्ड प्लेट्स, क्या क्या, मतलब स्वर्ण कलश सब कुछ है। और उनके साथ साथ उन्होंने क्या किया, जहां जहां वे ठहरे वहीं से आरती 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 हर के बताते, एक आरती दे रहे कि एक आरती हर, मतलब सारे कष्टों को, दुखों को, क्लेशों को, तकलीफों को दूर करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी को आरती देते हैं। हम सब जानते हैं कोरोना के टाइम पे हम कर्पूर की टिकियां जेब में लेके घूमते थे, क्योंकि अगर कर्पूर जलाए तो बैड बैक्टीरिया, मतलब कोई महामारी की जिस प्रकार की कीटाणु फैलने की तो संभावना आई ही नहीं। हम इससे ये पता चलता है कि भारत अपने स्वास्थ्य के प्रति इतनी सतर्कता रखने वाले देश हैं, ये इस रामायण से हमको पता चलता है। और इसके साथ साथ मैं और 1-2 उदाहरण मैं ये बताना चाहता हूँ
भगवान श्री राम जी को जी भी कथा जो हम तुलसीदास की बताते हैं, मैं हमेशा विद्यार्थियों के लिए कथा मैं आमतौर पर सुनाता रहता हूँ, क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जब भी हम बात करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग कैसे हमें लेना है, किन किन लोगों से हमें उदाहरण लेना है। स्वामी विवेकानंद की हम बात करते हैं, वैसे ही तुलसीदास के एक उनके जीवन की एक घटना से कैसे हम पॉजिटिव होना है, एक उदाहरण मैं बताना चाहता हूँ। आमतौर पर हमारे फिल्म ऐसे दिखाते हैं कि बहुत ऐसे फिल्म आते हैं कि बचपन में सभी लोगों ने उनको साथ कोई गलत व्यवहार किया, अनाथ है, माता नहीं है, पिता नहीं है, तो तुरंत वो क्या करते हैं कि लोगों पर पत्थर फेंकना शुरू करते हैं, और 10 दिन के बाद पत्थर तो डंडा बन जाता है, कुछ दिन के बाद तलवार और बंदूक, और जैसे अगले रील में बड़े होते ही दुनिया मतलब अपने शहर के सबसे बड़े गुंडा या माफिया बनके 20-20 गाड़ियों के साथ घूमते रहते हैं और लोग उसको खूब तालियां बजाते रहते हैं। ये है आदर्श नहीं है। इसमें तुलसीदास की एक कथा से मैं बताना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं तुलसीदास जी बहुत जैसे जन्म लेते ही कुछ ही दिनों में माता पिता का निधन हुआ, वही मंदिर में किसी गुरु के पास बैठ के वह जो मिलता था वही खाता था, वही पढ़ता था। लेकिन ये लगभग 11-12 साल के उम्र की एक घटना है तुलसीदास की। वह एक बार दोपहर के समय में ऐसे जा रहे हैं। देखिए, भारतीय परंपरा में इतनी अच्छी बात है कि जब भी दोपहर में हम खाना खाते हैं, खाना खाने के पहले किसी एक को, चाहे मूक जीव हो, कोई भी हो, मतलब जिनके पास खाना नहीं है उनको खाना खिला के हमें खाना खाना है। ये भारतीय सनातन धर्म की विशेषता है। ऐसे ही ये जा रहे लड़का, कोई एक साध्वी ने पूछा, बेटा आप रोटी खाएंगे? तो हाँ बोल दिया। और यहाँ कन्वर्सेशन ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, बेटा मैं आपको बढ़िया रोटी दाल सब्जी खिलाऊंगी, खाएंगे क्या? तो हाँ बोल दिया। और अंदर से एकदम गर्मा गर्म फूली 2-3 रोटियां दाल सब्जी लाके उनके सामने रख लिया। इसी बीच में कुछ किसी काम पे अंदर गए, 2 मिनट के बाद फिर बाहर आए तो तुलसीदास एकदम ऐसे देख रहे हैं। तो पूछा, क्या बेटा क्या हुआ, क्यों नहीं खा रहे? तो माँ आपने कहा कि मुझको रोटी दाल सब्जी खिलाऊंगी बोल दिया। तो ये तो है हो। इससे इस घटना ये सिखाती है 11-12 वर्ष तक तुलसीदास की नसीब में फूली हुई रोटी दाल सब्जी कभी देखा ही नहीं। मतलब क्या, जो जो टुकड़ा टुकड़ा जो भी मिला है वही खाया। तो इस प्रकार देखने से तुलसीदास तत्कालीन समय के सबसे बड़े माफिया डॉन बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। तुलसीदास इतनी गरीबी में जीने के बावजूद संपूर्ण विश्व को मोक्ष दिलाने वाले श्री रामचरितमानस जैसे अमर काव्य को दिया है। लेकिन इससे हमारे लिए सीख मिलती है। लेकिन हमें रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भी चीज हम पॉजिटिव में रखे, हमारे लिए क्या मिला नहीं, हम इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए हम क्या करें, इस देश की जनता की सुरक्षा और इस देश की जनता के लिए शिक्षा और इस देश की जनता के लिए सहयोग के लिए, इस देश में हमेशा हमेशा के लिए शांति बनाए रखने के लिए हमारी ओर से हम क्या कर सकते हैं, ये सोच देना है। ये सोच देती हैं इस प्रकार की कथा है। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि राम कथा सिखाती है जीना कैसे, कैसे जीना है सिखाती है राम कथा कहते हैं। और इस प्रकार अलग अलग उदाहरणों के साथ साथ मैंने तो कोशिश किया, और इसके साथ साथ मैं और अभी एक उदाहरण के साथ साथ मैं आगे करना चाहता हूं, क्योंकि राम के बारे में हम जितना भी बोले कहाँ हमको अंत होता है। क्योंकि हम सब आम तौर पर कहते हैं कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत कहते हैं। क्योंकि यहाँ तुलसीदास तो बहुत विनम्रता पूर्वक एक जगह मांगते हैं,
देखिए श्री राम से कुछ ही मांगने, क्या मांगना है? रीति महाराज की नेवाजिए जो मांगनी, सो दोष दुख दारिद्र दरिद्र कई कई छोड़िए। हाँ, इसका अर्थ ये है कि महाराज श्री राम की ये परम रीति है, क्योंकि भगवान राम ऐसे हैं, एक बार इस याचक को, मतलब तुलसीदास ने हम सबको हम भगवान राम के शरण ले लेते हैं तो हमारे सारे प्रकार, सभी प्रकार के दोषों, दुख और दरिद्रता को क्षीण व समाप्त करके ही दम लेता है, ये प्रभु श्री रामचंद्र। लेकिन यहाँ आध्यात्मिक अर्थ में ना लेकर, जब श्री राम को अपनाना मतलब, श्री राम को हमें अपने आप को सौंपना मतलब, राम कथा को पूर्णतः हम आत्मसात कर ले तो अपने आप, अपने सबसे पहले अपने सारे स्ट्रेस खत्म हो जाते हैं और सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती। यहाँ इसमें और अंत में एक बार लक्ष्मण पूछते, भाई आप तो ऐसे बड़े बड़े ज्ञान वाली बातें मुझको मत बताना, सिर्फ भगवान को प्राप्ति कर रहे हैं तो क्या करना है, यहाँ हम अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो क्या करना है? तो राम का एक संक्षिप्त उत्तर है, लक्ष्मण को बताते हैं, दो चीज छोड़ दो, मैं मेरा, तू तेरा, ये दो चीज छोड़ दिए, कोई डोंट टेक इनटू हार्ट, बस हम अपना कर्म ही करना है, जो भी करें और राम के लिए, भगवान के, मतलब इस भगवत, हम जो कार्य हमको मिलता है इस कार्य को भगवत प्रदत्त कार्य समझकर जो कार्य करता है, सारे तकलीफ, जो भी अड़चन, दिक्कतें, क्लेश जो भी है सब अपने आप हर जाता है। सबसे पहले खुद सुधर जाते हैं, तो हम सुधर गए, मतलब अपने आप सुधरना मतलब संपूर्ण दुनिया अपने आप सुधर जाती है। इस प्रकार राम कथा से, राम कथा को हम अपने दैनंदिन जीवन में हर समस्या का समाधान राम कथा हमको बताती है, समाधान मिलती है राम कथा में। लेकिन इसको कैसे हम अपनाए हैं, थोड़ा में ध्यान से अध्ययन करें तो अपने आप मिल जाता है, ये राम कथा की विशेषता है। आज लगभग और एक बार भारतीय शिक्षण मंडल की इस आयोजन में मुझको आमंत्रित किया, और मैं जो जानता हूं, मैं जो अध्ययन करता रहता हूं, इन चीजों को आपके साथ साझा करने के लिए ये तो स्वर्णिम अवसर शायद भगवान श्री राम जी ने जो मुझको दिया, मैं अपना कार्य एक गिलहरी जैसे मैं भी राम कार्य में हमेशा भाग लेना चाहता हूं। इसके लिए प्रभु परम सत्ता भगवान श्री राम जी को और एक बार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, और आप सबसे मिलने के लिए एक मौका दिया है, इसके लिए आयोजकों को भी मैं धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका ये लेक्चर बहुत ही इंस्पायरिंग रहा हमारे लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए। One thing we can say that negative circumstances cannot make any person to quit that thing. If we are taking those things in a positive manner, then we can develop. We can take it as a positive thing. तो इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद भी अगर भगवान श्री राम ने हमको कुछ उनके जीवन से अगर हम कुछ सीख सकते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है सर। और धन्यवाद हम सब लोगों को उसके बारे में बताने के लिए। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Any questions if anyone is having discussion? I have an observation, Dr. Preeti. Sure, sir. Please. ब्रह्मश्री राजू साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। On this day, on the next day to this day in 1969, Bharatiya Shikshan Mandal was born on Sri Ram Navami.
On that occasion, your pious self's conversation with all of us on what Ramayana means in the daily life and how apparently story-like things are scientific, you have given to us. And I would like to say that this is perfectly in line with the mandate of Bharatiya Shikshan Mandal to bring Bharatiyata in every aspect of life, particularly through education. BSM has taken on itself the responsibility, the commitment, the devotion to spread about our itihasas in its daily life. And National Policy on Education, National Education Policy 2020 uh, is the result of that effort. And we very humbly and with all humility suggest to this gathering that BSM has a greater role in that formulation. And Thiru Kasturi Ranganji and others have done a magnificent job. And we have our own role in compilation of about 60% of the material and submitted to that. I would take Dr. Preeti 2-3 minutes to introduce BSM. And all need not be the Sure, members, but sure, just sir. about BSM. Sir, please, we BSM, request you to meet sir, please. BSM has BSM creates a platform. For example, about a couple of weeks back, Kharagpur IIT entered into MOU with us. And we are in conversation with Central University of Tamil Nadu also, right from the earlier Vice Chancellor in charge, Dr. Marvel, and the present one also. We sent communications to them. And similarly to the other central universities also around. About 165, subject to minor correction, maybe some more might have been added in the recent past, last 2 weeks, or in are in contact with BSM's creation, RFRF, Research Foundation for Researchers. AICT also is in MOU with us, and quite a few IITs and IIMs and central universities, other universities are also. For example, Dr. Preeti, I would like to think, if you are recording, I'm sure you might be recording. Uh, Professor Raju's Garu's uh, conversation with us. Make a small present video, and with Sri Ramanavami celebration of BSM Thiruvarur University or whatever. If you put it, this will go a long way to others also to know through the interaction of Professor Rajgar. And that is how you may consider having a kind of a library which is accessible to one and all in this digital age. And secondly, this platform, for example, our management faculty or tourism faculty or Hindi faculty or whatever, whoever is doing something, if you put it on the platform, maybe somebody who is working in Nehu or working in IIT Kharagpur or IIT Bombay or IIT Madras or whoever might find it interesting to collaborate with us, collaborate with you, and then carry on the research in a more profound manner, because two brains perhaps many times may produce better, and the repetitions can be avoided, like you know. And this particular platform of BSM has in it women's wing, students wing, and institutional projects, publications, and all that academicians would look for. I suggest very strongly on this auspicious day and on the uh, to go through the websites of bsmbharat.org and rfrfoundation.org. Dr. Preeti might like to give it in the chat box, these websites. Please do go through Sure. and keep us in touch. You don't have to become members. If you find it interesting by interacting with our Mandal members and others, you are welcome to join. Otherwise, as educationists, we like you to keep us in touch with your work. And if we are of some service to you,
it is always a great pleasure for us to be of service to you. So I wish this orientation towards Ramayana, maybe a little more dispositions by our Sri Rajagaru might be more helpful. So please consider both in terms of video, audio, as also document to be made available to our students in such a manner that they find it interesting and come back to us. What is people are talking about corporate ethics? How is it relevant from Ramayana? Because our young generation would always like to know what is possible, what I can do for it, what I can learn for it. That is their urge. And so you and I in the academic realm need to cater to that requirement. They are capable. They are billion times more capable than me. My students are millions and billions times more capable than me. Their grasping capabilities are enormous. My only job is to just connect them to the appropriate learning material and learning opportunities. And BSM provides them in a very big manner, both to the faculty members as also to the youth of this nation. I wish this kind of events a great success, and this kind of events should be more and more in number. And श्री राम नवमी के शुभकामनाएं के आचार्य राजू जी साहब बोलते हैं, हम भी उनको आई एम जॉइनिंग विथ हिम टू कन्वे अवर श्री राम नवमी शुभकामनाएं. Tomorrow, please celebrate Sri Ramanavami in your families, in your groups, and wherever you feel like, you try to have it in collaboration with the BSM in that area. Like so, and if you do it with the BSM collaboration, just put up a banner and take the photographs, take the videos and all. These are all only to document and to feel the strength and become more strong about it. Nothing more than that. Please do go through www.bsmbharat.org, www.rfrfoundation.org. Please do go through, and I'm sure you will find them interesting. Namaskar, धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं. Thank you so much, sir, for giving such a wonderful introduction about BSM and its activities. धन्यवाद sir. राम नवमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. And now I request Dr. Raghu sir to present vote of thanks. Sir, please unmute sir. Namaste to all of you. It is a great privilege to me to present vote of thanks on this wonderful auspicious occasion. Thanksgiving is one of the most important event in any occasion, including all the philosophies across the country. There are in different religions also this Thanksgiving prayer or Thanksgiving event is considered to be one of the most important aspect. So at the outset, I am very much thankful to my profound thanks to Professor SVSS Narayan Raju Garu, professor from the Department of Hindi, for giving a wonderful analysis on a bird's eye view of a whole Ramayana and linking to the personality of Rama and making us understand what is the importance of the greatest mythological event, mythological history. Sir, you have very well coordinated with all the three. I am very much thankful for your wisdom, analytical situations and analytics which you have given, and I am very much thankful to you, sir. Thank you. Thank you. My immediate thanks goes to Dr. R.P. Raya, sir. I am listening to you for the first time, sir. You have used 2-3 very important phrases, sir, which everybody has to, which nobody can forget in their life. That one word is humiliation, sir. When really we understood that if the situation is true, the humiliation should come into our heart, so that the next time, if it is right, we will appreciate. If it is wrong, we will try to rectify it. And slowly, step after the step, we will mold ourselves towards the
holistic personality with wisdom and intellect, sir. I am very much impressed by your words, sir. And a whole 1 hour you spent with us, you spent your valuable time. I am also thankful to Dr. R.P. Raya, sir. And my next thanks goes to Dr. Preeti R. Gotmare. She is the inspiration for this program. She bought this idea. Based on our idea, immediately we have started working. In this work, Sir, thank you so much, sir. Thank you so much, sir. thank Please. you, madam. Actually, in the invitation, actually, I want to her name, but madam humbly told that name is not important, work is important. No, sir, it's a collective work for all the team members, sir. I cannot take alone these things. Yeah, but With the initially all the idea, efforts of yeah, yes, yeah, sir. ma'am, yeah, Thank you so much, sir. Thank you. yeah. So in this journey, yesterday, in spite of we are having lot of hectic schedules, including submission of papers, correction of papers, and all those things. Dr. V. Shivgami from the Department of Tourism, she is guest faculty here. She has worked on the background, designing of the brochure, creation of the link, sending to everybody, and all those things. She was helpful to me, and my special thanks goes to her. In spite of a lot of hectic schedules and lot of work strain, she has done all the help. Thank you to Dr. Shivagami for her help. And also, my thanks goes to Dr. M. Raja. Sir is a state treasurer, Bharatiya Shikshan Mandal from Dakshin Tamil Nadu Pranta. He is also very much inspiration. Every 2-3 days, sir will calls to me and tell that you have to do some activity, and he guides us. And also, sir, thank you very much for your kind support and timely guidance, sir. Thank you to M. Thank you, sir. Thank you. Just 1 second, Professor. Normally, Sir. it always happens that we forget people at home. Yes, sir. Howsoever they do, whatsoever they do, Yes. howsoever much they do, howsoever efforts they put in, howsoever continuously they interact with. And that happened with Dr. Raja today with me. He is part of our house, and I somehow we are all together. But at the same time, like what you mentioned about Dr. Preeti, is equally valid for Dr. Raja. And I'm glad No, that Dr. Raja has been in touch with Preeti and trying to encourage all the activities. Thank you, Dr. Raya, sir, for Dr. Not Dr. Raya, Dr. Raja, my 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 good feelings for you, and I'm glad that you are here. Thank you. no, it's our we are doing for the nation. It's Yes. our duty. Yeah. And next, my thanks goes to Dr. Shamala R. I am very much happy to get an opportunity to thank her because we will always just move informally, but I got an opportunity to formally thank her. Madam, you have spared your valuable time and spent the whole session. Thank you for your participation and support, ma'am. And then my thanks goes to my colleagues, Dr. Raja Perumal. He's assistant professor in the Department of Tourism and Hospitality Management, and Dr. K. Kavita. She is also the faculty member of the department, and Dr. Vaibhav Bhatt. And we are very much thankful to all the three colleagues who are always with me and supportive and taking care of this BSM's initiative forward. And the whole tourism department is itself here, all are them, and we are very much thankful to them. And Dr. Sadanandam is there from Bangalore. He works in Jain University, Bangalore, and some people are and one most important person for this today's meeting is Bhaskar. He is a BJP representative who takes care of this Thiruvarur region, and he is a very committed worker to BJP. Our thanks goes to Bhaskar sir also, and Ammaji Rajita. She is a scholar of the Library Sciences Department. She is also done shared with a lot of people, and she has also invited. And my student Gaurav Singh from Madhya Pradesh is also here, and all my students, all the tourism students, seniors, juniors are here, and all my students, scholars, teachers, colleagues, and well wishers, and mainly Raju sir, Raya sir, and Gotmare ma'am.
thanks to all of you. And I am very much happy to have starting on this day. This day is a more auspicious day. Navami is the most important day. In all the Tithis, Navami is the most, it is a 9 number, and it has own great value and great significance in our Indian philosophy. So as it was started on Navami, I feel that certainly this Mandal will do great work in the great intellectual work in the coming days. Thank you very much. Thank you one and all for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, Raghu sir, for presenting such a wonderful vote of thanks. Thank you. Thank you. Thank you, Thank you madam. all. Thank Jai you, Hind. Raghu sir. And with your permission, shall we end? Thank you, sir. Yes. Thank you all. Raghu sir, thank you. Thank Preeti you. ma'am, Thank thank you you. for joining, sir. Thank you. Thank you, thank Thank you. you It's very my much. pleasure So the always. great Sir, success. with the permission, And Jai Hind. Right. So this successful journey will continue. thank you, sir. Thank Thank you. you, Raghu sir.